Hello student, my name is Neha Miglani. Welcome to Divagar Education Hub. Today I am going to start the topic of types of research methods with examples, part 5th. This is my 5th video on this topic. In this video I am going to discuss the two types of the research with examples, exploratory research type and grounded theory research type. Before starting my video, I just want to say that please go through my previous video. In my previous video, I have discussed the various types of the research methods with examples. Like I have discussed the ethnography research type, I have discussed the descriptive research type, I have discussed the basic and applied research type, I have discussed the correlation research types also. So go through these videos, you can find out better understanding with numerous examples which I have already put under it about the types of the research. So let's start our video. Starting my video, I just want to say that just download the Divagar Education Hub app from the Google Play Store. In this app, you can easily get the UGC NET Paper 1 free online classes, and you can also get the 150 plus mock test from the different subjects which you are going to apply in the UGC NET, and then you can also read free study notes from the paper 1 and 2, and you can also get some announcements are being done under the Divagar Education Hub, and the live classes which are going to be conducted in the previous days also you can get it, and you can also chat with another students in this app also. So please, I just recommend you that you have to upload or install Divagar Education Hub app from Google Play Store. First type of research I am going to discuss in this video is exploratory research type. Before starting the explorative research type, I just want to say that I have put one example. मैंने हमेशा ही एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट की है, वो है कार एक्सीडेंट की. एक पर्टिकुलर रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है. अगर हम उनके कारण जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे रोड अकरेंस के कारण क्या है, रीजंस क्या है, तो वो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टाइप कहलाती है. बट जब हम सिर्फ डिस्कस ये करते हैं कि व्हाट द थिंग्स हैज़ बीन हैपेंड एंड वेयर दिस थिंग्स हैज़ बीन हैपेंड, हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट हो जाता है. सो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च किस तरीके की रिसर्च टेक्निक होती है, जब इसमें हम what are the reasons for happening of this situation, and we are going to find out what are the reasons for happening of that particular situation or problem are discussed, then it is come under the exploratory research type. So I will discuss with another meaning also. So exploratory research is the process of investigating a problem that has not been studied or thoroughly investigated in the past. Exploratory research किस तरीके की research type होती है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं, कुछ हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं जिनको अभी तक या फिर स्टडी नहीं किया गया है रिसेंट past में. So explorative research type of research is usually conducted to have a better understanding of the existing problem, but usually does not lead to conclusive result. Explorative research किस तरीके की research type है जिसमें हम लोग जो particular problem है उसकी better understanding करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको understand करने की कोशिश करते हैं कि actually वो existing problem है क्या है, ठीक है. बट इसमें हम लोग result लेके आए इसके बारे में हम श्योरिटी नहीं ले सकते हैं,
So researchers use explorative research when they are trying to gain familiarities with an existing phenomenon and acquire new insight into it to form a more precise problem. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टाइप एक रिसर्चर तभी यूज़ करता है जब वो इस चीज़ को जानने की कोशिश करता है या ट्राई कर रहा होता है कि वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स की उनको फैमिलियर होने की कोशिश करे, ठीक है, या फिर उनको कुछ एक न्यू इंसाइट, कुछ न्यू नॉलेज या न्यू इंफॉर्मेशन हम जब जनरेट करने की कोशिश करते हैं. सो इट बिगन्स बेस्ड ऑन ए जनरल आइडियाज़ एंड द आउटकम ऑफ द रिसर्च आर यूज टू फाइंड आउट रिलेटेड इशूज़ विद द टॉपिक ऑफ द रिसर्च. तो इस तरीके की जब रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं तो हम लोग एक जर्नल आउटकम्स के ऊपर आते हैं. हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो एक जर्नल बेसिस पे हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और वी विल यूज़ टू फाइंड आउट रिलेटेड इश्यूज़. हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर रिलेटेड इश्यूज़ को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. So in explorative research, the process of research varies according to the finding of new data or insight. Explorative research हर एक, जैसे अब मैंने कंडक्ट की explorative research एक सेम पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लेके और मेरे जो कलीग हैं उन्होंने भी सेम पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लेके और रिसर्च को आइडेंटिफाई करना शुरू किया है, ठीक है. तो हमारे जो रिजल्ट्स हो सकते हैं मे बी वेरीज, क्योंकि हमारी जो रिसर्च होती है वो हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है. सो आवर रिजल्ट्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ न्यू डाटा और इनसाइट. सो इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज इंटरप्रिटेटिव रिसर्च और ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच. द आउटकम ऑफ दिस रिसर्च प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन लाइक व्हाट, हाउ एंड व्हाई. मैंने जैसे पहले ही कहा है, जब हम लोग एक रिसर्च को जब हम एक डीप लेवल पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च भी बन जाती है. तो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च को कुछ हद तक हम ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च भी कहते हैं. तो इसमें हम इन चीज़ों का आंसर लेने की कोशिश करते हैं कि व्हाट हैज़ बीन हैपन, हाउ द थिंग शुड बी हैपन एंड व्हाई आर द रीजन्स, व्हाट आर द रीजन्स फॉर दैट हैपनिंग, जब व्हाई दिस थिंग शुड बी हैपन. हम जब इन तीनों चीज़ों के आंसर लेने की कोशिश करते हैं तो हमारी वो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च टाइप्स का पार्ट कहलाता है. सो नाउ we are going to discuss the characteristics of explorative research. So what are the characteristics or features of explorative research? We have the first feature, explorative research. Explorative research is inexpensive. हमारी जो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, क्योंकि इसका जो भी हाईली इंटरेक्टिव हम स्टडी करते हैं और इसमें हमारा जो भी स्टडी का नेचर होता है वो ओपन एंडेड होता है. ओपन एंडेड का मतलब क्या है, कोई भी इसको फर्दर स्टडी कर सकता है, कि मतलब इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो ओपन होगा सबके लिए, ठीक है. कोई भी ऐसा बाइंडिंग नहीं है कि इसके ऊपर फर्दर स्टडी नहीं की जा सकती है. ओपन एंडेड का मतलब यही होता है कि जब हमारी स्टडी ने हमने जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए हैं उन रिज़ल्ट्स के ऊपर आप दोबारा से एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है. सो दिस रिजल्ट इज़ नॉट बाउंडेड विद ओनली माई फाइंडिंग्स ओनली, ठीक है. सो इट इज़ इनएक्सपेंसिव इन nature. So there is usually no prior relevant information available for the past researchers. अब जब हम इस तरीके के रिसर्च को जब हम करते हैं तो ज़्यादातर हमें पास्ट इसके ऊपर जितनी भी फाइंडिंग्स हो चुके हैं इसके रेलेवेंट डाटा हमें उस अकॉर्डिंगली नहीं मिल पाते हैं. सो इट हैज़ नो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स. इसमें कोई भी हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करके चलते हैं. जैसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि सिस्टमेटिक वे से हम वर्क करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें भी हम यही चीज़ें करते हैं, हम सिस्टमेटिक वे से वर्क नहीं करते हैं. It answers questions like how, why, aiding the researcher to acquire more information about the research. इसमें हम ज़्यादातर किन चीज़ों का आंसर देने की कोशिश करते हैं, what the thing should be happened, how this thing has been happened and why the happening of this particular सिचुएशंस, ठीक है. तो इन चीज़ों को हम स्टडी करने की कोशिश इसमें करते हैं. सो द एब्सेंस ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट रिसर्च मीन द रिसर्चर विल स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग मटीरियल्स इन डिटेल, देयरफॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. जैसे कि हमें इस रिसर्च को कंडक्ट करने के टाइम पे हमें इसके प्रीवियस फाइंडिंग के बारे में हमें पता नहीं चलता है, तो ऑब्वियसली तो हमें स्टार्ट से बहुत डीपली स्टडी करनी है, हर एक चीज़ को बहुत
ग्रैप करके चलना है, जिसकी वजह से ये जो रिसर्च होती है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च कंसीडर होती है। तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है इस रिसर्च को कंडक्ट करने के टाइम पे, ठीक है। सो सच देयर सिंस देयर इज़ नो स्टैंडर्ड ऑफ कैरिंग आउट एक्सप्लोरेटिव रिसर्च, इट इज़ यूजुअली फ्लेक्सिबल एंड स्कैटर्ड। जब हम इस रिसर्च स्टडी को करते हैं तो इसमें जो भी हम लोग फाइंडिंग्स लेके आते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड वे से होता है। हम लोग जो अपनी अनडिफाइंड मैनर से काम करते हैं और फ्लेक्सिबल नेचर की ये स्टडी होती है। सो देयर मस्ट बी फ्यू थ्योरीज विच कैन वेरीफाई योर आउटकम। तो जो भी आप आउटकम लेके आओगे इनको प्रूव करने के लिए बहुत ही कम थ्योरीज अवेलेबल होती हैं। सो रिसर्चर कैन नॉट फॉर्म ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक रिसर्चर कभी भी इसके ऊपर एक क्लोज एंडेड कंक्लूजन कभी भी नहीं बना पाता है, ठीक है। तो क्लोज एंडेड कंक्लूजन बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द रिसर्चर इन दिस टाइप ऑफ स्टडी। रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल। आप जैसे जो भी रिसर्च की स्टडी कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए और वैल्यूएबल भी होनी चाहिए। सो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च मोस्टली डील विद क्वालिटेटिव डाटा। तो जब हम इस तरीके की रिसर्च स्टडी को करते हैं तो ये ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर डील्स करती है, क्वालिटी ऑफ द डाटा के ऊपर। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च। नाउ कम टू द हाउ टू कंडक्ट एक्सप्लोरेटिव रिसर्च, कि एक एक्सप्लोरेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। लाइक फर्स्ट स्टेप वी हैव एज स्टेप 1 इज़ द आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जो कि हर एक रिसर्च का प्री मोस्ट स्टेप होता ही होता है। सो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इट इज़, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। Now next come to the next type, create the hypothesis। जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो उसमें हम हाइपोथेसिस फॉर्म्ड करें चाहे ना करें वो हम पे डिपेंड करता है। बट जब हम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो हमें हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी होता है इस तरीके की स्टडी में। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमें उनको प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो इट इज़ द प्री मोस्ट कंडीशन इन द एक्सप्लोरेटिव रिसर्च दैट यू हैव टू फॉर्म द हाइपोथेसिस ऑल्सो, ठीक है, बिफोर डूइंग द स्टडी। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आ जाता है इसमें कंडक्ट फर्दर रिसर्च। आगे के जो भी स्टेप्स हम बाकी रिसर्च के लिए करते हैं तो उस तरीके से हम रिसर्च के लिए कंडक्ट करेंगे। बेसिकली रिसर्च में ये एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में यही एक मेन पार्ट आ जाता है कि यू हैव टू फॉर्म द हाइपोथेसिस। आपको हाइपोथेसिस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरीके की रिसर्च को कंडक्ट करने के टाइम पे। बाकी जितने भी स्टेप्स आप बाकी रिसर्च के टाइप्स को कंडक्ट करने के लिए करते हो तो इसमें भी वही आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द एग्जांपल्स ऑफ हमारी एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च के लिए हमारी कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एज वी हैव द एग्जांपल इज़ द एक्सप्लोरेटिव रिसर्च एग्जाम्पल ऑफ मर्डर। किसी की मर्डर इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी का मर्डर हो चुका है, वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेट करना है जाके, तो ये तो हमारी एक्सप्लोरेटिव रिसर्च का पार्ट ही आ जाता है, क्योंकि हम इसमें वाई को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि मर्डर होने के क्या कारण हैं, ठीक है। तो इस तरीके की रिसर्च में हम इन चीज़ों को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर द एक्सप्लोरेटिव रिसर्च टाइप। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एक्सप्लोरेटिव रिसर्च एग्जाम्पल ऑन प्रोडक्ट रिसर्च। जब हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करें कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कस्टमर्स को जितनी आप उनके उस प्रोडक्ट की प्राइस है उतनी वो वैल्यूज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्लोरेटिव रिसर्च टाइप। Now we will consider the next example of the explorative research ट्रेंड एनालिसिस। हमने किसी प्रोडक्ट का ट्रेंड देखना है कि वो उनका ट्रेंड कैसा चल रहा है, सीजनल ट्रेंड है या सर्कुलर ट्रेंड है या मोशन ट्रेंड है या एनी अदर ट्रेंड विच वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो इन सभी ट्रेंड्स को वो कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज आवर एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि एक्सप्लोरेटिव रिसर्च और ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। कुछ रीजंस की वजह से ये एक दूसरे को डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में क्रिएट होते हैं, बट ये दोनों रिसर्च जो है एक दूसरे के पूरक ही है, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत सारी कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ आ जाती है। तो ग्राउंडेड थ्योरी में भी हम ये करते हैं, टू द डीप स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो हम जैसे कि हम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में हम करते हैं। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च।
व्हेन डू यू यूज़ ग्राउंडर थ्योरी। सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, हम ग्राउंडर थ्योरी स्टडी को कब हम कंडक्ट करते हैं। व्हेन यू नीड ए ब्रॉड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस, जब आप लोगों को एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट चाहिए, बिल्कुल ब्रीफ वे से आपको कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, ठीक है, और आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट, आपने जो भी टॉपिक लिया उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, तो यू विल गो थ्रू द ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च। Especially helpful when current theory about phenomena are either inadequate or non-existent। उस तरीके की सिचुएशंस में भी ये ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च को हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारी स्टडी का जो होता है वो इनएडिक्वेट स्टडी हो, अभी तक कंप्लीट स्टडी ना हुई हो, या फिर कुछ एग्जिस्टिंग नेचर की स्टडी ना हो, तब भी हम ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च को हम कंडक्ट कर सकते हैं। When you wish to study some process such as how students develop as writers, जब हम इस तरीके की स्टडी को जब हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि स्टूडेंट्स एक राइटर के तौर पे कब फॉर्म्ड होते हैं, प्रोसेस इस तरीके के डेवलप होंगे, तो उसको हम जब प्रोसेस को हम देखने की कोशिश करते हैं तो तभी हम ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च को फॉलो करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स इन विच वी विल यूज़ द ग्राउंडर थ्योरी research. So now what are the method we are going to use in grounder theory research? The basic method of the grounder theory research is that approaches to read a textual database। जब हमारा जो डाटाबेस है बिल्कुल टेक्सुअल फॉर्म में है, या फिर हम कुछ डिस्कवरीज कर रहे हैं, या फिर हम कुछ कैटेगरीज, कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज़ को इंटर रिलेशनशिप उनका फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब हम जो है इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स इसमें एप्लीकेबल होते हैं ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च के टाइम पे, लाइक वी हैव इंटरव्यू, we have observations, we have documentations, we have historical records and video tapes। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च के टाइम पे, जिनको हम यूज़ करते हैं हमारे डाटा कलेक्शन के लिए। हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, हम लोग उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम लोग उनसे ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, या फिर कुछ उनके रिगार्डिंग प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स कुछ पड़े हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हम देख सकते हैं, या कुछ वीडियो टेप्स जितनी भी होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च के पार्ट्स आ जाते हैं, मेथड्स आ जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च, इसकी कौन कौन सी टाइप्स आ जाती है, लाइक वी हैव सिस्टमेटिक डिज़ाइन। फर्स्ट टाइप इसकी आ जाती है कि सिस्टमेटिक डिज़ाइन है, कोई भी काम करेंगे सिस्टमेटिक वे से ही करेंगे, सिस्टमेटिक एनालिसिस इसमें परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। A systematic design is grounded theory emphasis that use of data analysis steps of open, Excel और selective coding। ठीक है, जब हम कुछ डाटा एनालिसिस स्टेप्स को इस तरीके से फॉलो करते हैं कि उनको ओपन करना है, उनको एक्सेल करना है, या उनको सिलेक्टिव कोडिंग करनी है, या कुछ डेवलपमेंट करनी है, या लॉजिक पैराडिज्म जो भी हमने करना है, तो हम लोग सिस्टमेटिक वे से जब हम काम करते हैं तो हमारी वो ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च की एक टाइप आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जब हम किसी स्टडी का डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, डाटा एनालिसिस में हम ओपन कोडिंग करनी होती है, ठीक है, लाइक वी हैव द पेन रिलीफ। हमने एग्जांपल मैंने इसमें लिए पेन रिलीफ की। पेन रिलीफ इज़ अ मेजर प्रॉब्लम व्हेन यू हैव arthritis. Some the pain is worse than other times, but when it gets really bad, it hurts so bad. So you don't want to get out of bed. You don't feel like doing anything. Any relief you get from the drugs that you take is only temporary or partial. जब हम पेन रिलीफ के ऊपर स्टडी करते हैं, पेन बहुत दो तरीके की होती है, एक बियरेबल पेन होती है, एक अनबियरेबल पेन होती है। एक अनबियरेबल पेन इस तरीके की पेन होती है कि आपको बहुत सारा उसको बैड फील होता है, आपको बहुत तकलीफ़ होती है उससे, ठीक है, तो आप जब वो तभी क्योर होगी जब आप कोई ना कोई इसको प्रिक्योर करने के लिए आप ड्रग लोगे, ठीक है, जब मेडिसिन आप लोगे, जब पेन रिलीवर आप कुछ लोगे, तब हम इस तरीके की स्टडी को हम करते हैं ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द अनदर थिंग इज़ पेन रिलीफ, तो मैंने बता दिया आपको, उसका ड्यूरेशन वगैरह, ये जो स्टडी, अब ये मैंने एग्जांपल ही एक तरीके से कोट करके बताया आपको, ठीक है। सो नाउ वी हैव द अनदर एग्जांपल्स ऑफ द रिसर्च इज दैट कंसिडरिंग विजुअल 3 year स्टडी ऑफ रेफरल एंड प्लेसमेंट ऑफ ब्लैक। हम लोगों ने इसमें स्टडी करनी है कि ब्लैक की क्या रेफरल है, लोग इसके बारे में क्या थिंक कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द ग्राउंडर थ्योरी रिसर्च। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल एज प्लेस स्टूडेंट्स ऑफ हाई इंसिडेंस
स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। हमने ये स्टडी करनी है कि जब हम स्टूडेंट्स को एक हाई लेवल प्रोफिशेंसी लेवल पे हम लोग उनको एग्ज़ामिन करते हैं, जब उनको ऐसे कोर्सेज में डालते हैं जो अभी बहुत सारे वे में कंडक्ट हो रहा है, तो उसमें हम उनको जज करते हैं तो वो किस तरीके से उस कोर्स को अडेप्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अवर रिसर्च। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडे टॉपिक इन विच आई हैव डिस्कस द explorative research type and explorative research type, and we have discussed the grounded theory research type. So in my next video I am going to discuss the examples of historical research. So thank you so much. If you have any doubt I will take a live session, ठीक है, आप उसमें मेरे अपने जितने भी डाउट्स होते हैं आप उनको क्लियर कर सकते हो. So thank you so much about my today topic.